Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Yes, ma'am. Thank you. Okay, thank you, Divya. Second year computer engineering syllabus is just a minute. I want to present the screen. We covered 4 units of object-oriented programming and 2 units of computer graphics, as well as we covered Group A assignment of object-oriented programming part 1. Okay, so today I am going to start third unit of computer graphics. First unit is about graphics primitives and scan conversion algorithms. Second unit is polygon windowing and clipping. And third unit is 2D, 3D transformation and projections. So what is the content of third unit? First we will study 2D transformation, that is introduction, homogeneous coordinates, 2D transformation, translation, scaling, rotation, shear and rotation about an arbitrary point. This is 2D transformation. अगर 2D transformation टॉपिक आपने अच्छी तरह से कर दिया, then 3D transformation is also easy for those students who studied this 2D transformation very well. And then projection. So 2D ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आने के बाद 3D ट्रांसफॉर्मेशन इजी जाएगा. ओके, एंड देन प्रोजेक्शन. तो आज मैं थर्ड यूनिट आपको नोट्स में से लेने वाली हूँ, तो थोड़ा स्लो होने वाला है क्योंकि नोट्स में लाइन बाय लाइन दिया होता है और पीपीटी में ओनली द मेन पॉइंट्स. So third unit is 2D, 3D transformation and projection. As in real world, we rearrange objects or look at them from different angles. The computer must be able to do same. Implementing such a change is called transformation. Okay. What is transformation? Transformation means making changes or allowing modification to the picture. ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करने वाले हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट में. ओके, सो टू स्टडी 2D ट्रांसफॉर्मेशन वी must know some terms like matrix. What is matrix? Already we know that what is matrix. It is a set of row and column. If a matrix is having m rows and n columns, then we can say it as it has dimension m into n. Okay, so row and column and dimension is m into n. Okay, elements of matrix are accessed by the number of rows and columns of that element. Okay, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या है? What is the rule for matrix multiplication? Anyone? इस चैप्टर में आपको थोड़ा न्यूमेरिकल है, तो ये सब उसका प्रिपरेशन है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होता है. We can multiply two matrices A and B
only if the number of column of first matrix A is same as that of the number of rows of second matrix B. मतलब अभी ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? Yes, multiplication is possible. Why multiplication is possible? Because there are 3 column, 1, 2 and 3. 3 column in A matrix and 3 rows in B matrix. First row, second row and third row. So column equal to row, then multiplication is possible. Multiplication of matrix is not cumulative. तो cumulative property क्या होती है? If A into B, then then also B into A is equal. But multiplication of matrix is not cumulative. ये जो property है cumulative of matrix, it is not applicable for multiplication of matrix. Then identity matrix क्या होता है? It is a square matrix that is having number of rows and columns are same with all elements 0 except the main diagonal elements are all 1. मतलब जिसका diagonal element 1 है और बाकी 0 है, that is the identity matrix. So this is the example of identity matrix I, or we can say this is also identity matrix 1 0 0 1. So diagonal elements are 1. अभी 2D बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन. 2D बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन इमेज. ओके. Modification can be done by basic transformation, such as what are the basic transformation? There are 3 basic transformation. First is translation, second is scaling and third is rotation. तो मैं इसी सीक्वेंस में जाने वाली हूँ. नोट्स में ये सीक्वेंस दिया है, बट I would like to go first translation, then scaling and then rotation. These are the 3 transformation we can do on image. So what is translation? Interesting है वैसे ये chapter. Translation. Translation. Basic meaning of translation is what? Moving whole image is called translation. मतलब आपका ग्लास टेबल पे है, वो किचन पे जाएगा, दैट इज ट्रांसलेशन. उसको आपने ट्रांसलेट किया है, ओके, ट्रांसफर किया है, मीन्स मूविंग होल इमेज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. वी कैन शिफ्ट द इमेज by adding some value to all points of image by which we want to shift the image. Okay, तो इस डायग्राम में आपको ए बी एक इमेज दिख रही है, दैट इज द लाइन, एंड आई वांट टू ट्रांसलेट दिस लाइन. मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया राइट साइड को. तो इसमें क्या हुआ है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कुछ डिफरेंस आ गया है. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से वहां मूव होता है, तो उसमें कोऑर्डिनेट ऐड होता है या फिर माइनस होते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट ऐड होता है या फिर माइनस होता है, दोनों एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है ए बी इमेज, तो इसमें 4 यूनिट से वो शिफ्ट हुआ है. So if we want to move image by 4 units right, then we have to add 4 to all the x value of image. Okay, मतलब मेरा पहले a ऑब्जेक्ट a पॉइंट यहाँ पर था, अब इस इमेज में यहाँ पे दिख रहा है आपको. So it
transferred or translated by some distance that is called as tx. पहले इसका x था, अभी x डैश हो गया है, लेकिन ये x डैश न्यू कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे आया, ओल्ड प्लस सम वैल्यू, वही दिया है यहाँ पे. सो मेरा न्यू वैल्यू होगा x न्यू एंड y न्यू. Then how to calculate x new, that is x old previous x value plus tx. tx means उसमें कुछ ऐड किया है. Okay, so this tx and ty are called as translation factor. ये ट्रांसलेशन फैक्टर ऐड करके हमें नया पोजीशन मिलता है. So tx and ty are translation factor for x and y axis. This is ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन समझ में आया. सिर्फ आपको शिफ्ट करना है ऑब्जेक्ट, उसका साइज चेंज नहीं करना है, उसको रोटेट नहीं करना है, सिर्फ उसको जिस पोजीशन में है उसी, मतलब जिस शेप में है उसी शेप में उसको सिर्फ ट्रांसलेट करना है. नाउ स्केलिंग. व्हाट इज स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन? स्केलिंग मीन्स जनरली हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग द साइज. स्केल करना, तो रिड्यूस भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं. सो इट मीन्स चेंजिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं अभी नोट्स पे ले रही हूँ. पीपीटी में नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे तो फास्ट हो जाएगा. Scaling means changing the size of an object or image. Okay. Let point P with coordinates x, y can be represented in matrix form as, that is x, y. Let we are multiplying point P matrix by another matrix T of dimension 2 into 2. Then we will get resultant matrix P1 with dimension 1 into 2. Okay. That is P into T is equal to P1. एक नया इमेज मिल रहा है. हमें किसी पॉइंट को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, that is another matrix T, then we will get new coordinates, new size, that is P1. Okay. Here T gives relation between original point P and new point P1. If T is identity matrix, means diagonally 1 is there, then what happen, P into T is equal to P1. तो P हमारा जो है उसमें अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, ओके, तो P इक्वल टू P1 ही आएगा. ओके, मतलब 20 into 1 कर दिया तो 20 ही आंसर आता है मल्टीप्लीकेशन. सो हियर P इक्वल टू P1. If T is not identity matrix, then it is P2. Okay. हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स स्केलिंग में क्या करते हैं, this is my triangle having some coordinates, okay, 7 10 2 5 10 2. तो इस डायग्राम को, इस ट्राइंगल को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकती हूँ. सो आई कैन राइट द ए बी सी कोऑर्डिनेट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म. ए का कितना है 2 5 कोऑर्डिनेट है, बी 7 10 कोऑर्डिनेट है, और सी का x and y 10 और 2 है, that is 10, 2 means 10 2. And we want to scale this polygon, this is the polygon or any triangle, by
3 units in x direction and 4 units in y direction. मुझे ये ट्रायंगल स्केल करना है, उसका साइज मुझे चेंज करना है. So 3 units in x direction and 4 units in y direction. We need to multiply x coordinate of all polygon with 3. तो सभी x कोऑर्डिनेट्स जो होंगे पॉलीगॉन के उनको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉलीगॉन विथ 4 और जितने भी y कोऑर्डिनेट्स है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो स्केलिंग मैट्रिक्स विल बी हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मतलब ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन, ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें एक मैट्रिक्स होता है. ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, स्केलिंग मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स. तो स्केलिंग मैट्रिक्स क्या होगा? दिस इज एस एक्स एंड दिस इज एस वाई. एस एक्स मीन्स 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना है और 4 एस वाई मीन्स 4. तो मुझे 4 से उसको y कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना है. दिस इज माय स्केलिंग मैट्रिक्स. आर यू गेटिंग? तो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था? मेरा ट्रायंगल का इमेज यहाँ पे मैंने लिया है इस मैट्रिक्स फॉर्म में और मैं क्या करने वाली हूँ, उसको मल्टीप्लाई मतलब उसका साइज इंक्रीज करने वाली हूँ. तो ये मेरा स्केलिंग मैट्रिक्स हो गया. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स वी विल गेट रिजल्टेंट मैट्रिक्स. जो भी कोई उसका परिणाम होगा ये मैट्रिक्स होगा. और ये मैट्रिक्स को हम अगर ड्रॉ करेंगे 620, तो ये मेरा 620 है. ये 21 to 40 ये मेरा पॉइंट है एंड दिस इज 30 और 8 ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो ये है 38. तो ट्रायंगल की साइज इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखा लेकिन दैट विल इंक्रीज. पहले जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 2 5 थे, अभी 620 हो गया ए का पॉइंट. तो स्केल हो गया है मेरा ट्रायंगल. ओके, so if we want to double the width related to x axis, then we have to use this matrix 2 1. If we want to double height and width, both height and width, मुझे एक ऑब्जेक्ट है मेरा, उसको मुझे डबल ही करना है, तो मैं हाइट और विड्थ दोनों डबल करूंगी. So for that I will use this matrix that is 2 and 2 here. अगर मुझे कोई मेरा सर्कल है उसको मुझे हाफ करना है. ओके, for that I will use this matrix 0.5 0.5 diagonally. This is sx and this is sy. Scaling factor x, scaling factor y. Are you getting? sx क्या है, sy क्या है, tx क्या है, ty क्या है? tx ty are translation factor, sx sy scaling factor. सिंपल थिंग है कि आपको और कोई ऑब्जेक्ट हम रियल वर्ल्ड में मूव करते हैं तो उसके लिए हमें कोई सोचना नहीं पड़ता कि एक्स एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस किधर है. ओके, डायरेक्टली हम टेबल से उठा के सपोज किचन में रख देते हैं, बट उसको हमें कंप्यूटर सिस्टम पे कैसे दिखाना होगा वो मूवमेंट. ओके, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड दिस 2D ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट. तो
कोई भी ऑब्जेक्ट हम मूव करते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन होता है, और वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों का भी होता है ट्रांसलेशन. So in general term, we can say matrix S is scaling matrix and Sx is scale factor for x coordinate and Sy is scale factor for y coordinate. तो ये मेरा स्केलिंग मैट्रिक्स है. S इक्वल टू Sx Sy. ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है बिकॉज टू सॉल्व द numerical you need this matrix format. When we scale the image, all points will get changed except the origin. Okay, origin हमें change नहीं करना है, all points change हो जाएंगे. If Sx is greater than 1, then width is expanded. If Sx is less than 1, width is reduced. If Sy greater than 1 means y coordinate scaling factor, then height expanded, height को increase कर रहे हैं, then 1 height को reduce कर रहे हैं. ट्रांसलेशन तो हो गया है हमारा. सो ट्रांसलेशन होने के बाद स्केलिंग होने के बाद रोटेशन. तो रोटेशन क्या है? कुछ भी टर्म समझने से पहले आपको क्या करना होता है, उसका मीनिंग रियलाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है. ओके, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. स्केल मतलब साइज इंक्रीज कर रहे हैं. और तीसरा है रोटेशन. रोटेशन करना है मतलब क्या करना है आपको, कोई भी चीज उसका साइज नहीं इंक्रीज करना है, उसको सिर्फ रोटेट करना है टू द एक्स एक्सिस और टू द वाई एक्सिस. तो ये मेरा पी पॉइंट है. पी इज माय वन पॉइंट हैविंग एक्स एंड वाई coordinates. Okay, and this is the mathematical formula to calculate x and y, that is r cos phi and r sin phi. These are the two equations we will get. और x dash मतलब p dash मेरा रोटेट होने के बाद वाला इमेज है, रोटेशन होने के बाद वाला. तो उसके लिए क्या है, x dash is equal to r cos of this phi प्लस दिस थीटा, इन दोनों का एडिशन होगा. तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा. तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये हमें सिर्फ ये फॉर्मूला कैसे आया वो यूज करने के लिए मतलब वो दिखाने के लिए ये मैथमेटिक्स है. डायरेक्टली हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है. ओके, सो x dash comma y dash. What is x dash, what is y dash? This is our new coordinates after rotation. रोटेशन होने के बाद के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो रोटेशन होने के बाद उस होने के लिए क्या फॉर्मूला है, x कॉमा वाई मतलब हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इनटू इन दिस मैट्रिक्स यू हैव टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा. यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा. तो ये याद रखो, डायगोनली cos थीटा है और यहाँ पे sin थीटा एंड माइनस sin थीटा. दिस इज माइनस sin थीटा. तो ये cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये कैसे आया, ये इक्वेशन पूरा सॉल्व करने के बाद. ओके, सो नो नीड टू write all these things. You have to only remember this formula for rotation. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि एक पॉइंट है P 5,4, उसकी कोऑर्डिनेट्स हैं, इज रोटेटेड
anti-clockwise by an angle of 45 degree. Find rotation matrix and resultant point. ओके, एंटी क्लॉकवाइज दिया है और एंगल दिया है 45, तो हमें जस्ट क्या करना है, cos 45 sin 45 जो थीटा है वहां पे वो वैल्यू लिखने के हैं, ठीक है। और 5 4 ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स मतलब ओरिजिनल पॉइंट, मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स, इसको रोटेशन मैट्रिक्स बोल सकते हो। जो भी वैल्यूज आएंगे फिर इसका मल्टीप्लीकेशन होगा cos 40 rotation of that point of in anti-clockwise. Are you getting? Yes, Hemangi. And what if it's rotated clockwise? What is? What if it is rotated clockwise? Object rotation clockwise and anti-clockwise, na? So clockwise means this direction, anti-clockwise this is the formula for anti-clockwise direction whatever given, और clockwise के लिए सिर्फ कुछ साइन चेंजेस है, वो फॉर्मूला निकाल के रखा है, आई विल शो यू। रोटेट द लाइन ए बी whose end points are 2,5। अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज cos थीटा माइनस साइन थीटा। अभी समझ में आया डिफरेंस क्या है यहाँ पे? Yes, ma'am. हाँ, पहले एंटी क्लॉकवाइज था तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, और जब हम क्लॉकवाइज करते हैं तो यहाँ पे निगेटिव साइन आता है, मतलब साइन का चेंज है वो। जो भी है वो सब मैथमेटिकल इक्वेशन है और वो इक्वेशन आपको रेडी करके दिया हुआ है। कोई भी रियल वर्ल्ड में हम इतना सोचते नहीं कि ये क्लॉकवाइज घुमा रहे या एंटी क्लॉकवाइज, बट फॉर कंप्यूटर सिस्टम वी हैव टू रिमेम्बर दैट व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड व्हाट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सिर्फ साइन यहाँ पे माइनस होगा, बाकी एज इट इज। ओके, इस ये साइन माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा का एक्सचेंज हुआ है वैल्यू, सिर्फ साइन चेंज हुआ है, एक्सचेंज। तो ये भी मेरा ए बी मेरा फर्स्ट पॉइंट था, उसको रोटेट करने के बाद विथ 30 डिग्री, तो ये जो पॉइंट है मैंने इसको क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है क्लॉकवाइज। तो लाइन यहाँ पे आपको 30 डिग्री रोटेट हो गई, ऐसे दिखा है, ये हैंड रिटन है तो ऐसे लिखा है कि मतलब 30 डिग्री हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, you have to just change the sign for clockwise and anti-clockwise. Homogeneous coordinates. Till now, we have seen transformation considering rotation about origin. But there may be the case we want to rotate point with respect to point other than origin Q. मतलब अभी ये हमारा 2D मैट्रिक्स है, सॉरी 2 डायमेंशन के लिए हम सोच रहे थे ना, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के हिसाब से हम ट्रांसलेट कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे और स्केल कर रहे थे, लेकिन अदर देन ओरिजिन हमें
रोटेट करना है, स्केल करना है, ट्रांसलेट करना है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट देन ओरिजिन. So this is my P point and this is not at the origin. So I want to rotate this point with respect to this Q. Origin or Q point. To handle such situation, we need to first transform Q to origin. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमें कोई भी चीज विदाउट ओरिजिन के रिस्पेक्ट से ट्रांसफॉर्म करनी है तो पहले उस चीज को ओरिजिन को लाना पड़ेगा. फर्स्ट मूव दैट Q to origin and we have to make the changes and again translate to that point Q. मतलब read this one. To handle such situation, we need to first transform Q, this Q to origin. मुझे यहाँ इसको origin को लाना है. And secondly, rotate point P. फिर उसको rotate करना है. रोटेट करने के बाद फिर से उसको मुझे Q की तरफ ट्रांसलेट करना है. समझ में आया? तो रोटेट अगर आपको दूसरे पॉइंट पे करना है एक्सेप्ट द ओरिजिन, देन यू हैव टू first bring it to the origin, then rotate and then translate to that respective point. To combine this transformation, we can use homogeneous coordinates. Okay, for this purpose, मतलब मेरे ऑब्जेक्ट पे मुझे कुछ भी परफॉर्म करना है, मतलब उसको ट्रांसलेट करना है, स्केल करना है, रोटेट करना है. These are the number of transformation series. For this purpose, I need homogeneous coordinate system to combine all these transformation. In homogeneous coordinate, use 3 into 3 matrix. Homogeneous coordinate के लिए हमें 3 into 3 matrix use करना है. Introduce additional dummy variable W such that point xy can be specified by values, that is wx, wy and w. This is the dummy variable. From this we can easily recover original point by dividing w to x and w to x and y point. So x is equal to wx upon w and y is equal to wy upon w. For simplicity we use w as 1. तो कॉम्प्लेक्स नहीं करना है इक्वेशन हमें, इसलिए w इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे. इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट स्केलिंग मैट्रिक्स विल बी, अभी सबका मैट्रिक्स है, स्केलिंग का मैट्रिक्स है, रोटेशन का मैट्रिक्स है, ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है. तो स्केलिंग मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पे, एस एक्स एस वाई फॉर स्केलिंग और यहाँ पे 1. रोटेशन मैट्रिक्स एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज कॉस थीटा साइन थीटा, और ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के लिए है इसलिए 3 into 3 मैट्रिक्स लेना पड़ता है. सो कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे ये 1. फॉर क्लॉकवाइज साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस. एंड बाय यूजिंग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन ऑपरेशन, तो ट्रांसलेशन जो है वो कैसे होगा, यहाँ पे tx एंड ty. तो बस आपको पूरा अभी तक जितना लेक्चर हुआ है उस लेक्चर में सिर्फ ये 3 मैट्रिक्स याद रखने हैं, बाकी सब भूल गए तो भी चलेगा बस, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस मैट्रिक्स फॉर this matrix for scaling, this is for rotation, these two for rotation and this is for translation. तो अभी आपको एक एग्जांपल में ये करूंगी, सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे होता है. मतलब एक प्रोग्राम भी है मेरे पास अभी,
उसको रोटेट करने के लिए, परफॉर्म द रोटेशन बाय 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, अबाउट द ओरिजिन एंड अबाउट पॉइंट P। ओरिजिन को हमें रोटेट करना आसान है, लेकिन अबाउट पॉइंट P को थोड़ा डिफिकल्ट है। तो केस फर्स्ट क्या है हमारा, ये कोऑर्डिनेट्स हम लिख के लेंगे जो है 0 0। ए मतलब 0,0 है पॉइंट, तो उसको 0 0 और ये मैट्रिक्स फॉर्म में 1 लिखेंगे यहाँ पे। फिर ये बी है, उसको 1,1 मतलब यहाँ पे थर्ड जो रो है हमारा 1 1 रहेगा। 5 2, दिस इज द सी पॉइंट। ठीक है, ये 3 डायमेंशन फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें यहाँ पे 1 1 ऐड किया है, नहीं तो सिंपली हम इतना ही लिखते थे 0 0 1 1 5 2। तो ये हो गया। फिर ये रोटेशन का फॉर्मूला, फिर ये मल्टीप्लिकेशन होगा उनका, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये आउटपुट आएगा। तो ये अबाउट ओरिजिन है, ये सिंपल हो गया। लेकिन केस टू इंपॉर्टेंट है। केस टू क्या बोल रहा है कि अबाउट पॉइंट P को उसे हमें रोटेट करना है, तो -1 पॉइंट है वो। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, PP ये हमारा पॉइंट, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा टू द ओरिजिन। T मतलब ट्रांसलेशन, जो भी पॉइंट है उसको पहले ओरिजिन को ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो ये ट्रांसलेशन का फॉर्म मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। फिर उसको रोटेट करना है, जो भी आंसर आएगा उसके साथ हमें रोटेशन करना है। सो रोटेशन का मैट्रिक्स ये है 45 डिग्री। ठीक है, फिर इनका सबका ये जो कैलकुलेशन आता है, दैट इज आवर आंसर। समझ में आया? अगर आपको ओरिजिन को रोटेट करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन रोटेशन टू द स्पेसिफिक पॉइंट है तो उस पॉइंट के लिए आपको ये एक स्टेप बढ़ेगी आपकी, उसको ओरिजिन को लाने के लिए। दिस इज द स्टेप टू bring that point at the origin. Okay, P dash के न्यू पॉइंट्स, फिर से उसको हमें उस पॉइंट पे लाना होगा जो रोटेशन पॉइंट दिया है। उसके लिए P डबल डैश T that is equal to multiplication of these two matrix, and whatever the multiplication, this is our new point of triangle. ठीक है गाइस, ये जो है सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्राम्स, यही दिया हुआ है यहाँ पे। इज देयर एनी क्वेरी इन दिस प्रोग्राम? क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है इसमें कुछ क्वेरी है, सेम एग्जाम्पल नेक्स्ट दिया हुआ है। ये हो जाएंगे। MCQ में ये आ भी सकता है क्वेश्चन, मतलब आपको दिया जाएगा ये एग्जाम्पल, परफॉर्म अ 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस, और ऑप्शंस में ये आंसर होगा ऑप्शंस में।
जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा 12.51, 1951, 19 माइनस 2 1, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे एक ही आपको ऐसे दिया गया है कि इस पॉइंट को रोटेट करो, तो आपको क्या करना होता है? पहले उस पॉइंट को ओरिजिन को लाना है, ओरिजिन को लाके उसको रोटेट करना है, और रोटेट करके फिर से उसको उस पॉइंट पे ले जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, डायग्रामेटिकली बताना पड़ेगा वो। ठीक है, अभी यहाँ पे डायग्राम ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि स्केलिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशन है, वैसे ही रिफ्लेक्शन भी है। रिफ्लेक्शन, सो प्लेसिंग अ मिरर एंड टेकिंग मिरर इमेज इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन भी दो टाइप्स के हैं, रिफ्लेक्शन एट वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन एट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरा पी पॉइंट है, उसका रिफ्लेक्शन इस तरफ अगर मैं ले लूंगी तो ये पॉइंट्स मिलेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू माइनस हो जाती है, वाई पॉजिटिव रहेगा। और अगर मेरा यहाँ पे क्यू पॉइंट है तो मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है टू द वाई एक्सिस, तो माइनस एक्स हो जाएगा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस भी माइनस होगा। ठीक है, here magnitude of x and y remains same, only sign of x coordinate gets changed. X comma y into t, that is equal to minus x comma y. अगर y एक्सिस को रिफ्लेक्ट करना है तो हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होता है? -1 1 डायगोनल पर, -1 1, दिस इज फॉर y एक्सिस। और x एक्सिस, अभी x एक्सिस के लिए क्या होगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। और तीसरा है रिफ्लेक्शन एट ओरिजिन, तो ओरिजिन के लिए -1 -1, ये रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है। दिस इज माय x comma y point. I want to reflect this point at x axis. ओके, ये x एक्सिस है और इस x एक्सिस को मुझे रिफ्लेक्ट करना है, इस पॉइंट को, मतलब ये इस तरफ आएगा। और ये अगर मेरा पॉइंट है तो इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो ये एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन है। और वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन क्या होता है? दिस इज वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना?
कौन सा, ये फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उसके हिसाब से। एंड रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू x, मतलब 4 रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन 3 नहीं है, रिफ्लेक्शन 4 है। रिफ्लेक्शन एट x एक्सिस, रिफ्लेक्शन एट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन एट ओरिजिन, ये रिफ्लेक्शन एट ओरिजिन है। मतलब देखो यहाँ पे मेरा P पॉइंट है और इसको मैं ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करने वाली हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिफ्लेक्शन एट y axis and reflection at x axis indicate reflection at origin। सिर्फ हम आपको थोड़ा थियरी याद रखना है और ये मैट्रिक्स याद रखना है। देन रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू x, हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन मुझे एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। इस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए। ओके, सो दिस इज द लाइन और यहाँ पे मेरा x कॉमा y पॉइंट है और मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? मैं अभी यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ से मेरा एक लाइन जा रहा है, उस लाइन के हिसाब से अकॉर्डिंग मैं रिफ्लेक्शन कर रही हूँ। ये मेरा x कॉमा y है और ये y कॉमा x। सिर्फ आपको क्या होगा इसमें, x और y का पोजीशन चेंज होगा, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे when we are using the reflection in the line y equal to x। ठीक है, this much is sufficient for this lecture. After that we will see what is shear transformation, and in that what is y shear and x shear. Please all of you give the attendance. Today's attendance code is 10. 10 is the attendance code, मेरे चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ, code is 10. Thank you guys, you can leave now.